Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Nizamuddin Uthmani, and I welcome all of you to my YouTube channel at the name of Pharma Medica. Today, we are going to discuss another very, very important topic in pharmacokinetics. You know, we have started this series of pharmacokinetic, so this is probably the third lecture of pharmacokinetic, and that is on the bioavailability. What are the learning objectives for today's lecture? Define bioavailability and bioequivalence, explain time concentration curve, describe area under curve, describe the factor affecting the bioavailability, and describe the hepatic first pass effect and pre-systemic elimination and its clinical significance. So ये सारी चीज़ें bioavailability को affect कर सकती हैं और ये सारी चीज़ें we will discuss one by one. ठीक है? Okay, now coming to the definition of the bioavailability. Bioavailability is defined as the fraction of unchanged drug that reaches into the systemic circulation following administration by any routes. ठीक है, अगर आप IV लेते हैं so that's become 100% bioavailability. जब आप orally लेते हैं so some of the drugs it will be destroyed to the gastric acids, some of the drug will be destroyed by the intestinal flora and enzyme, and a small amount of the drug will reach into the systemic circulation. So that fraction of the drug which reach into the systemic circulation for its final action, we call that as a bioavailability. Or the fraction of administered drugs that reaches the systemic circulation, ये दूसरा definition जो short definition है, ठीक है? It is related with the rate of absorption, extent of absorption and dosage form. ठीक है, वो जो कर्व हम बनाएंगे उसमें ये सारी इन तीन चीज़ों को हम explain करते हैं, ठीक? Now, suppose this is an example of a drug which has been taken IV. ठीक है, so यहाँ से वो start कर देते हैं infusion and then you give the whole dose. So 100% of the drugs become available in the systemic circulation whatever चुके हैं. ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी maximum concentration आ जाती है और जब drug के infusion को आप stop कर लेते हो तो वहाँ से फिर drug की elimination फिर वो शुरू हो जाती है and finally the drug is removed from the body. ठीक है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कर्व. यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को डालते हैं और यहाँ पे हम टाइम डालते हैं. ठीक है ना, इसको हम टाइम कंसंट्रेशन कर्व भी कह सकते हैं कि जब हम टाइम के अगेंस्ट उसके ड्रग्स की कंसंट्रेशन को प्लाज्मा लेवल में हम डालते हैं. ठीक है, एंड इट्स गेव अस द तीन चीज़ें जो हमने स्टार्ट में उसके डिफिनीशन में कहा था कि ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, देन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड देन उसका टाइम कितना लगता है. ठीक है, सो ये तीनों चीज़ें वो हमको वो ये इस एक ही डायग्राम में पता चलता है. ठीक है, सपोज यू आर गिविंग ए ड्रग ओरली, आप एक ड्रग दे रहे हो एक मरीज को ओरली, लेकिन दिस ग्राफ इज़ बेसिकली यूज फॉर द ओरल ड्रग. ये याद रखिए, ये आप IV ड्रग के लिए ये ग्राफ यूज़ नहीं होता, इट इज़ यूज फॉर द ओरल ड्रग. ठीक है, आप एक ड्रग यूज़ करते हो और वो आप मरीज़ को ले रहे हो, वो ड्रग्स बॉडी के अंदर चला जाता है और एक ख़ास कंसंट्रेशन तक वो पहुंच जाती है. ठीक है, जब वो उसी ख़ास कंसंट्रेशन तक पहुंच जाए देन इट्स प्रोड्यूसेस इट्स एक्शन, वो एक एक्शन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, और फिर उसके बाद वो ड्रग्स फिर वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं. ठीक है, अब जब आप ये ड्रग देते हैं, सपोज़ ये वाला जो ड्रग है इसको हम ले लेते हैं, ये फार्मूलेशन C है. जब आप ये एक मरीज़ को देते हैं, लेकिन वो जहाँ पे ये मिनिमम इफ़ेक्टिव कंसंट्रेशन है MEC जिसको कहते हैं, जहाँ से ड्रग्स के इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं, अगर वो इसको भी टच ना करे और वापस वो बॉडी से एलिमिनेट कर ले, सो ऐसे ड्रग्स की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट विल प्रोड्यूस नो एक्शन इन द बॉडी. ठीक है, इसी तरह कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि वो जब आप एंटर करते हैं सो उसका लाइक दिस B1, इसके इफ़ेक्ट यहाँ से शुरू हो जाते हैं बट एट द सेम टाइम उसके इफ़ेक्ट मैक्सिमम तक पहुँच जाती हैं एंड देन इट प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्शन एंड फाइनली इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. सो द मिनिमम effective concentration is that concentration of the drug at which it produces its action, minimum action, and this is MTC is the maximum therapeutic concentration. This is the concentration of the drug through which it's produce maximum action. लेकिन जब आप इससे और आगे उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे so that become the toxic concentration, ये उसकी टॉक्सिसिटी बन जाती है. अच्छा, अब ये जो MTC है जिसको हम मैक्सिमम थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन कहते हैं, इसको हम मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट मैक्सिमम आ जाती है. दिस इज अ मैक्सिमम थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन, लेकिन ये टॉक्सिसिटी के लिए मिनिमम लेवल भी है. सो दिस मैक्सिमम थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन में भी अ मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ से फिर कंसंट्रेशन जब ऊपर जाएगी देन द ड्रग विल प्रोड्यूस इट्स टॉक्सिसिटी. ठीक है,
और ये जो एरिया हैं इन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन के दरमियान जो एरिया है इसको हम कहते हैं थेरेप्यूटिक विंडो। ठीक है, इस एरिया में वो ड्रग्स अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। सो इस किस्म के ड्रग जो कि मिनिमम इफेक्ट को टच नहीं करती, वी डोंट नीड सच ड्रग्स। इस किस्म की ड्रग जिस तरह फार्मूला बी है विच प्रोड्यूस मैक्सिमम एक्शन, सो दिस ड्रग विल बी एन आइडियल वन। और ये जो ड्रग है इसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी फास्ट होती है, बड़ा बड़ा इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बड़ा फास्ट है, और ये मिनिमम और मैक्सिमम थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन को क्रॉस करके ये टॉक्सिक लेवल में भी चले जाते हैं। सो इस किस्म के ड्रग्स भी आइडियल ड्रग्स नहीं होते। ठीक है, okay, so the area under such a curve provide information about the extent amount of drug absorbed and the rate of absorption as well as the time required. ठीक है, Tmax. Tmax is that time through which the drugs produce the Cmax. Tmax is that time, the time required for a drug to produce the maximum concentration in the body. We call that as the Tmax. ठीक है ना, the Tmax is the time which is required for a drug to produce the maximum concentration in the body. We call that as the Tmax. Like suppose इस एक फार्मूला ए को लेते हैं, फार्मूला ए इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत रैपिडली होती है और यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव हो जाती है within 1 hour. ठीक है, so this is 1 hour, this is basically the Tmax of this A formulation in which it has produced the maximum concentration, the Cmax. ठीक है, इसी तरह ये अगर हम B वाला ले लें, इसकी यहाँ पे आ जाती है मैक्सिमम कंसंट्रेशन। सो इट्स बिकॉज लाइक हम कह सकते हैं कि तकरीबन ये 4 घंटे लेते हैं। सो दिस इज द Tmax for this B drugs. ठीक है ना, this is the time, this is the maximum time through which a drug produce its maximum concentration in the blood, in the blood or in the plasma. So it means that this drug absorb very slowly and it's produce its action for a quite longer period of time, and this can be considered as a good drug. ठीक है, और इसी तरह ये जो तीसरा ड्रग है इसका भी मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ जाती है तकरीबन 6 आवर्स में, लेकिन वो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस ड्रग्स के वो मिनिमम इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करता। सो ऐसे ड्रग्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बायो अवेलेबिलिटी को हम किस तरह मैयर करते हैं? सिंपल फार्मूला है कि एरिया अंडर करो फॉर एनी रूट डिवाइडेड बाय एरिया अंडर करो फॉर आईवी रूट। एरिया अंडर करो फॉर एनी रूट डिवाइडेड बाय एरिया अंडर करो फॉर आईवी रूट। ठीक है, सो आईवी रूट विल बी ऑलवेज 100 और ये जो एरिया अंडर करो फॉर एनी अदर रूट वो 50 भी हो सकता है, वो 30 भी हो सकता है, वो 80 भी हो सकते हैं। ठीक है, सो आप वही लाइक सपोज एरिया अंडर करो की जो वैल्यू आती है वो 30 है और एरिया अंडर करो फॉर आईवी वो 100 है। सो 30 को आप आई 100 पे तकसीम कर ले, जो फिगर आपके पास आएगा दैट विल बिकम द फिगर। उसको जब आप परसेंटेज पे डालते हैं तो उसको 100 पे के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, okay, these are some of the value for the bioavailability for different route. Like for the IV route, the bioavailability is 100% and this is the most rapid route. ठीक है ना, इसकी जल्दी अब्जॉर्ब। इंट्रामस्कुलर रूट वो 75% से लेके 100% तक तो नहीं हो सकते, लेकिन 75% से ऊपर हो सकता है और 100% से कम। ठीक है, सो लार्ज वॉल्यूम ऑफन फिजिबल एंड मे बी पेनफुल, ये पेनफुल रूट भी है। सबक्यूटेनियस है, इसकी भी तकरीबन सबक्यूटेनियस और IM के बराबर है। ओरल रूट की बाज़ ड्रग्स के लिए बहुत कम होगी और बाज़ ड्रग्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन 100% नहीं हो सकती। इट फॉल बिटवीन 5 एंड 90 या 80 इसके दरमियान ये फॉल करती है। ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूट। ठीक है ना, और रेक्टल रूट इसकी भी 30 और 100 से कम तकरीबन। इनहेलेशन की भी 5 से लेके और कोई 90 या 80 तक हो जाती हैं। इन ट्रांसडर्मल की भी तकरीबन 80 से ऊपर और 100 से तो डेफिनेटली 100 सिर्फ IV रूट क्रॉस करती हैं, बाकी कोई भी रूट ख्वाब वो इंट्रामस्कुलर है, ख्वाब वो सबक्यूटेनियस है, ख्वाब वो ट्रांसडर्मल है, कोई भी रूट वो IV वो 100% बायोअवेलेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है, अब कमिंग टू, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग्स दे आर यूज थ्रू द ओरल रूट, सो जब एक कंपनी नई ड्रग्स बनाती है और उसकी ओरल रूट पे वो देने के लिए जब वो सोचते हैं तो वो किन किन फैक्टर को देखते हैं? ठीक है, वो ये फैक्टर देखते हैं कि ये जो ड्रग है इट विल हैव टू गो इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और वहाँ पे ये इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म है वहाँ से वो ड्रग कंप्लीट लिबरेट होगा, यानी कैप्सूल है तो उससे वो निकल जाएगा, और कोटेड टैबलेट है तो टैबलेट से वो निकलेगा। सो द ड्रग विल गेट लिबरेशन फ्रॉम इट्स फार्मास्यूटिकल फॉर्म, देन इट विल गो undergo dissolution within the gastrointestinal fluid. It will escape the metabolism undergone by the intestinal flora, intestinal acid, intestinal flora, intestinal enzyme, उससे इसने निकलना होगा। It will have to undergo absorption through the wall of the intestine, either through the active or passive permeation, or escape the gut wall metabolism. इसने वहाँ से भी निकलना है, gut wall metabolism से
भी निकलना है और या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से या पैसिव ट्रांसपोर्ट से इससे एब्जॉर्ब भी होना है। देन इट विल हैव टू एस्केप द इंटेस्टिनल ल्यूमन एक्सक्रीशन थ्रू बाय इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर। हाँ, हो सकता है कि वो ड्रग्स इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर चला जाए और वहाँ से सिस्टमिक सर्कुलेशन के बजाय दोबारा वो उसको इफ्लक्स किया जाए बैक इनटू द इंटेस्टिनल ल्यूमन एंड एस्केप द फर्स्ट फॉस्ट लीवर इफेक्ट। ठीक है ना, ये भी एक फैक्टर है कि हो सकता है कि वो ड्रग तो एब्जॉर्ब हो लेकिन फर्स्ट फॉस्ट इफेक्ट में वो लीवर में उसकी इतनी ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो कि आपके लिए सिस्टमिक में वो ड्रग इतना ज़्यादा अवेलेबल ही ना हो। सो ये सारे फैक्टर। नाउ कमिंग टू द फैक्टर विच इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, ये फैक्टर एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। सो सिमिलरली ये ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को भी इफेक्ट कर सकती है, लाइक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द ड्रग, आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, फॉर्मुलेशन, वैलेंसी, डोजेज फॉर्म, ठीक है ना, देन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टिकल साइज, ठीक है, देन एरिया, वेस्कुलरिटी, स्टेट ऑफ ऑब्जॉर्बिंग सरफेस, हो सकता है कि वहाँ पे कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या कोई उसकी सर्जरी हुई हो, ठीक है ना, इंटेस्टाइनल का साइज कम हुआ हो, गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, कंटेंट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट लाइक फूड एंड ड्रग्स, ठीक है, इससे कंटेक्ट टाइम, हो सकता है मरीज़ को डायरिया हो और इसके इंटेस्टाइनल वॉल के साथ ड्रग्स की कंटेक्ट ही कम आ जाए, एंड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, bile acid and bile salt. So these all factors, they affect the absorption of the drugs, so they can also affect the bioavailability of the drug. Okay. The other factor which affect the absorption of a drug is the first pass effect. The first pass effect. You know, when the drug is absorbed, या तो वो इंटेस्टाइनल फ्लोरा की वजह से वो डिस्टर्ब हो जाती हैं या फिर वो इंटेस्टाइनल ल्यूमर की वजह से उसके मेटाबॉलिज्म होती हैं, उससे जो ड्रग एब्जॉर्ब होती है वो एंटर इनटू द पोर्टल वेन से वो जब लीवर में जाता है, सो लीवर अगेन मेटाबोलाइज सम पोर्शन ऑफ द ड्रग और उससे कुछ पोर्शन निकल के वो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाती है। अगर हम इसका सिंपल एग्जांपल ले लें कि सपोज अगर आपके इंटेस्टाइन में 100% एक 100 मिलीग्राम की डोज जहाँ पे पहुँच गई, तो कुछ इसमें से कुछ पोर्शन स्टमक एसिड डिस्ट्रॉय कर लेगा, कुछ इंटेस्टाइनल एंजाइम डिस्ट्रॉय करेगा, कुछ इंटेस्टाइनल फ्लोरा डिस्ट्रॉय करेगा और उसमें से 75% यानी 100 मिलीग्राम में से 75 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वही 75 मिलीग्राम जब लीवर के थ्रू पास होता है, सो लीवर इन डिफरेंट ग्लूकुरोनिक एसिड कंजुगेशन वगैरह जितनी भी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म की, इट विल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द ड्रग एंड ओनली वही 100 मिलीग्राम से 75 और 75 मिलीग्राम से फिर 50 मिलीग्राम तक आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी। या अगर हम परसेंटेज ले लें तो 100% अगर आपके इंटेस्टाइन में है तो उसमें से 75% हार्डली एब्जॉर्ब होगी इनटू द पोर्टल वेन और फिर पोर्टल वेन से जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी इंफीरियर वेना केवा में, तो वो तकरीबन 50% तक रह जाती हैं। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट फास्ट इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फास्ट इफेक्ट्स में क्या आता है, वो गट वाल, आपके पोर्टल ब्लड और लीवर, ये सारी चीज़ें जो ड्रग्स की अवेलेबिलिटी पे जो इफेक्ट करती हैं, वी कॉल दैट एज द फर्स्ट फास्ट इफेक्ट। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, द ग्रेटर द फर्स्ट पास इफेक्ट द लेस द ड्रग विल रीच टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो अगर ऐसा ड्रग है जिनका कोई आईवी फार्मूलेशन पॉसिबल नहीं है, आईएम भी पॉसिबल नहीं है, सबक्यूटेनियस भी पॉसिबल नहीं है और आपने ज़रूर वो थ्रू ओरल रूट देनी है और उसकी फर्स्ट पास इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो, सो इट मीन्स यू विल हैव टू गिव दैट ड्रग इन हायर डोजेस। ठीक है ना, या फिर एक ऐसा ड्रग है जिसका लाइक लेग्नोकेन, जिसकी फर्स्ट इफेक्ट 100% है, यानी अगर आप ओरली दे रहे तो वो ड्रग्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। सो ऐसी ड्रग्स को फिर आप ओरली फार्मूलेट नहीं कर सकती, यू विल हैव टू either formulate that through the IV route or through some other routes. ठीक है, so drug with the larger first pass effect have to be given through either oral route in a large doses, या तो large dose में आपने देनी होंगे या आपने फिर किसी और रूट के थ्रू उसको दे।
नाउ कमिंग टू अनदर टर्म्स एंड दैट इज द बायोइक्विवेलेंस। बायोइक्विवेलेंस, अच्छा, एक मेडिसिन है, एक कंपनी ने बनाई है, दूसरी मेडिसिन ने एक दवाई है लाइक एमॉक्सिल, एक कंपनी ने बनाई है, दूसरी कंपनी ने भी एमॉक्सिल यानी वही फार्मूला बनाई है किसी और नाम पे। जब ये दोनों दवाइयों की मिलीग्राम सेम हो, जब दोनों दवाइयों के साइज सेम हो, वी कॉल दैट एज अ इक्विवेलेंट, वी कॉल दैट एज अ इक्विवेलेंट। लेकिन जब दोनों दवाइयाँ आप एक रूट से लेते हैं, यानी अगर दोनों टैबलेट्स आप ओरली लेते हैं और दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम हो, तो इसको हम फिर बायो इक्विवेलेंस कहते हैं, ठीक है। इसके जब मकदार सेम हो, बाहर जिसका शेप, मकदार, क्वांटिटी सब कुछ सेम हो, फार्मूला सेम हो, वी कॉल दैट इक्विवेलेंट ड्रग। और जब उसकी अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी सेम हो, वी कॉल दैट एज अ बायो इक्विवेलेंट ड्रग, ठीक है। सो जब भी कोई स्टैंडर्ड दवाई बनती है, यानी पहले कंपनी कोई दवाई बनाती है और वो मार्केट में आ जाती है, तो उसके बाद जितनी भी दवाइयाँ और कंपनी उसकी कॉपीज़ बनाते हैं सेम फार्मूले के, सेम जेनेरिक के, तो वो फिर उसी स्टैंडर्ड दवाई के साथ उसको चेक करते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी को, बायो अवेलेबिलिटी को, और इसी बायो अवेलेबिलिटी को वो लोग कहते हैं कि ये बायो इक्विवेलेंस है। तो अक्सर कहते हैं कि सर हमारी जो दवाई है इसके बायो इक्विवेलेंस प्लान स्टैंडर्ड के बराबर है, या उससे 1% कम है, या 0.5% कम है। इस तरह के वो फिर जब इंशाल्लाह जब आप डॉक्टर बनेंगे तो फार्मास्यूटिकल वाले इस तरह आपको प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। सो ड्रग फार्मूलेशन आर कंसिडर्ड एज अ फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट if they contain the same active ingredient and are identical in strength, concentration and dosage form, ठीक है, बाहर से जब आप दवाई देखते हैं। लेकिन जब वो दवाई आप ओरली लेते हैं और दोनों की बायो अवेलेबिलिटी सेम हो, सो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट ड्रग फार्मूलेशन आर कंसिडर्ड टू बी बायो इक्विवेलेंट व्हेन द रेट ऑफ इन एक्सटेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। इसको फिर हम बायो इक्विवेलेंट कहते हैं। यानी सपोज आपने इसोमेप्राजोल की टैबलेट ली है, इसोमेप्राजोल की पर उसके 2 ब्रांड है, आज आपने एक की दवाई ली है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी आपने चेक की, अगले दिन आपने दूसरी की ड्रग दवाई, दूसरी ब्रांड की दवाई ली है और उसकी बायोअवेलेबिलिटी चेक की, अगर दोनों सेम है तो इट मीन्स कि ये जो ड्रग है ये इक्विवेलेंट भी है, क्योंकि दोनों में इसोमेप्राजोल है, दोनों कैप्सूल फॉर्म में, दोनों के फार्माकोकाइनेटिक, दोनों की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। दीज आर इक्विवेलेंट ड्रग। डोजेज फॉर्म भी सेम है, एक में भी 40 मिलीग्राम है, दूसरे में भी 40 मिलीग्राम है। लेकिन जब उसकी अवेलेबिलिटी भी सेम हो, जब आप उसका प्लाज्मा लेवल मेजर करते हो, दोनों की बायो अवेलेबिलिटी भी सेम हो, सो वी कैन कॉल दोज ड्रग एज बायो इक्विवेलेंट, ठीक है। Okay, example like phenytoin is available in the tablet like dilantine and eptine. इसी तरह paracetamol is available as a Panadol and Pedrol. If the differences in bioavailability of these two properties are the same dose, same dosage form is less than 20%, these are known as bioequivalent. So हम आम तौर पे अगर 20% से उन दोनों में फ़र्क यानी कम आ रही हो, 20% से कम आ रही हो, सो वी कैन से दैट दीज ड्रग आर बायो इक्विवेलेंट, ठीक है ना। क्योंकि स्टैंडर्ड के साथ अगर उसका फ़र्क, जो स्टैंडर्ड मेडिकेशन होती है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक सिप्रोक्सिन में सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, इट कॉस्ट मोर देन 1000 रुपीज़। इसके अलावा एक और प्रिपरेशन है लाइक साइसिन और लाइक निविडेट, उसकी प्राइस है तकरीबन 300, 350, 400 के लगभग। तो दोनों की जो बायो इक्विवेलेंस है उसमें फ़र्क तो है, लेकिन प्राइस में भी बहुत फ़र्क है, ठीक है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन आपके पास आ जाए, यू कैन गो फॉर द हायर वन। अगर आपके पास इतना सिवियर कंडीशन नहीं है, सो यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज अदर ब्रांड्स, ठीक है, जिसकी कीमत थोड़ी सी कम हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। With this, I came to the end of this another presentation, and thank you very much. Please don't forget to subscribe to my channel, Pharma Medica, and Dr. Nizamuddin Uthmani, और आप अपने सजेशन से मुझे आगाह कर लें। थैंक्स वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।